Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter number 4, computer network. Yesterday we have studied about the component of the network, means what the components are needed to create a network. आपके नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, हार्डवेयर वाला भी, सॉफ्टवेयर वाला भी, मीडिया, होस्ट, सर्वर, protocol, all. Right? Now, the next topic of this chapter is the types of the network. Network means the connection between minimum two, maximum a lot, minimum two, so that they can share, they can transfer the data, the value to other device. So based on the size, basically based on the size, based on their ruling technology, controlling technology, we divide the network in basically 4 parts. First, LAN, MAN, WAN and PAN. First one is the LAN, local area network. What is the local area network? You have mentioned a lot of book you have seen. Within the 5 kilometers a network is created, is called the LAN. But that not is the proper definition. A LAN is a small network which size should not be more than 5 kilometers, but the size may be a building, a room also. मतलब एक रूम के अंदर भी वो आपका नेटवर्क हो सकता है, वो आपका एक पूरी बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है. साइज बढ़ते बढ़ते 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है. पर 5 किलोमीटर के अंदर दैट इज नॉट अ डेफिनेशन. अ लैन विच इज यूजिंग, देखिए आपको कम्युनिकेशन के लिए 2 चीजें यूज करते हैं. एक होती है टोपोलॉजी and one is the technology. What is the topology? Topology is the hardware, physically जो नेटवर्क है, नेटवर्क के कंप्यूटर किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है. इट मे बी अ रिंग, मे बी बस, मे बी स्टार, मे बी मैश, ट्री, एनीवन, राइट. तो फिजिकली कंप्यूटर का कनेक्शन, द वे ऑफ कनेक्टिंग द कंप्यूटर इज कॉल्ड द टोपोलॉजी. एंड द टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयरली मीन्स लॉजिकली किस तरीके से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं. टोपोलॉजी फिजिकली किस तरीके से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी लॉजिकली वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं. नाउ a LAN is that when a network is using the same topology and the same technology, means एक ही फिजिकल तरीके से वो सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए सॉफ्टवेयरली लॉजिकली एक ही तरीका यूज कर रहे हैं. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक रूम के अंदर अलग टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसी के जस्ट बगल में अलग टेक्नोलॉजी यूज आ रही है. तो दे आर 2 लैन्स, भले वो एकदम अगल बगल है, बट दे आर नॉट अ सिंगल लैन. So LAN is the small network of the computer which is using the same topology and same technology to communicate with each other. The maximum distance
is the 5 किलोमीटर, विद इन द 5 किलोमीटर, वो विद इन द 5 किलोमीटर मिनिमम में 1 रूम भी हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकती है, 2 बिल्डिंग हो सकती है, दिस वन. बस द मेजर थिंग इज they all connected computer as connecting with the same way, physically connecting with the same way, and logically using the same technology is called the local area network, LAN. The speed of the network is so much fast because the LAN is the network is the small one, so computer are near to each other, so speed is the fast one, quality better होती है. ठीक है. Now come to the MAN, Metropolitan Area Network. Now just imagine in mind a company is there, ठीक है, which has some branches in other cities. जैसे you are living in Prayagraj and company has one branch in Prayagraj, one in Lucknow and one in Varanasi. Company want to create a network between these branches. Means these branches can communicate with each other. Now here come in the mind. The network is communicating with each other LAN only, not from the all. Means okay, this is in the Prayagraj, this is in the Varanasi, this is in the Lucknow. So this network can access the file of this network. This network can access the file of this network. Means not the all. A network which is connecting these 3 branch only. This network is called the MAN, Metropolitan Area Network. अगर हम साइज देखें तो अब सिटीज है, किलोमीटर बढ़ गया, बट दिस इज ऑल्सो अ स्मॉल नेटवर्क. मीन्स दिस इज कनेक्टिंग द ब्रांचेज ओनली. नाउ कम टू द WAN, वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क जैसा कि सुनने में ही आ रहा है, मीन्स द वाइड, वेरी वाइड. ठीक है. मीन्स व्हेन यू आर कनेक्टिंग more than LANs, different types of LAN, ढेर सारी LAN को मिलाकर जब आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो वो WAN कहलाता है. एंड द वाइडेस्ट नेटवर्क इज द इंटरनेट. इंटरनेट आपका सबसे वाइडेस्ट नेटवर्क है, विच इज कनेक्टिंग मोर देन LAN. आपका सिटीज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट सबको मिलाकर आपका एक सबसे बड़ा नेटवर्क क्रिएट होता है, जिसमें नो लिमिटेशन ऑफ द साइज, डिस्टेंस, लैंड, ढेर सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी वाले, अलग अलग टोपोलॉजी वाले, अलग अलग यूज करने वाले सबको मिलाकर जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो दैट इज द WAN, wide area network. So it is connecting continents, countries, all. You can communicate the person which is sitting on different continent, different country. You can communicate with using this wide area network, and the widest सबसे बड़ा वाला is called the internet. Now come to the PAN, personal area network. Personal area network is the smallest one. Smallest. It is just relating to a personal one. Means if a person is connecting its personal devices, means अपना स्मार्टफोन, अपना iPod, अपना लैपटॉप, अपना प्रिंटर, इन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया. मीन्स आप अपने स्मार्टफोन से अपने लैपटॉप में डेटा भेज रहे हैं, या लैपटॉप से आईपॉड में भेज रहे हैं, या किसी से भी प्रिंटर पे प्रिंट निकाल रहे हैं. मीन्स द डिवाइसेज आर एनसर्कल विद द वन पर्सन. So this network is called the personal area network, PAN. Right? Now the characteristics, PAN की characteristics.
क्लोज विद इन बिलो 10 मीटर्स। अब पर्सन है, पर्सन अपने सारे डिवाइसेस लेके बैठा है और आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, तो डिस्टेंस उसका सबसे स्मॉल 10 मीटर्स। लैन का आपका लैन क्रिएट करने में मेनली आप केबल्स और द वायरलेस वाईफाई द वायरलेस लैन एंड विद वायर कोएक्स केबल और फाइबर ऑप्टिक मिलाकर आप एक लैन स्मॉल लैन क्रिएट करते हैं। ठीक है, टिपिकली ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बेसिकली इट इज फॉर द टीवी केबल। आपका टीवी केबल दूर दूर है, वो आपस में कनेक्ट करने के लिए इस जगह पर वो यूज करता है कोएक्स केबल। विद इन द सिटीज उसको टीवी इंफॉर्मेशन भेजती है। और वैन इज द वायरलेस नेटवर्क विच इज कनेक्टिंग more than one lines. Now the next topic is the transmission media. ट्रांसमिशन मीडिया, देखिए जब मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क बताया था तो उसमें वन कंपोनेंट इज द मीडिया। मीडिया मतलब माध्यम जिसके थ्रू आप जो भी डेटा भेज रहे हैं, फाइल भेज रहे हैं, वॉइस भेज रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, जिस रास्ते से भेज रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द मीडिया। मेनली वी डिवाइड द मीडिया इनटू द टू पार्ट्स. First one is the wire and second one is the wireless. First one is the wire. Basically using the wire we send the digital signal. ठीक है, तो when we use the small network, जहाँ पर वायरिंग करने की पॉसिबिलिटी हो, और वो पॉसिबिलिटी आपकी बड़ा नेटवर्क है और बीच में जोग्राफिकली ऐसा है जहाँ पे तार वार नहीं खींच सकते, वहाँ पर नहीं, लेकिन जहाँ पर वायरिंग की चांस हो वहाँ पर आप वायर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वायर में आपका डेटा डिजिटल जाता है, स्पीड से जाता है और डेटा आपका सिक्योर होता है। ठीक है, तो व्हेन वी आर यूजिंग द वायर to send a data, then the media is the wire. When we are using the wireless, in the wireless means the air. In wire we are sending the data in the form of current, volt के फॉर्मेट में, करंट के फॉर्मेट में हम डेटा भेजते हैं, mainly in the LAN. Wireless means when the geographical area is like that, you can't connect the computer with the wire, then we use the wireless, means we are using the air. अब एयर में आपकी ढेर सारी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, अलग अलग वेव्स होती हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग होती है। मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द इंफ्रारेड रेडियो सिग्नल, माइक्रोवेव, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी रेंज को यूज करके आप डेटा को सेट करते हैं। ठीक है, तो मेन मीडिया इज द वायर एंड वायरलेस। वायर में आप तार यूज करते हैं, वायरलेस में आप एयर यूज करते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज द वायर। When we are using the wire as a transmission media, so many wires are available to send the data
from one place to another. Generally we use this on to create a LAN. The first wire is the twisted pair. ट्विस्टेड पेयर केबल, जो सबसे पहली वायर होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ठीक है। अब ये ट्विस्टेड पेयर केबल होती क्या है और कहाँ यूज करते हैं, देखिए। वायर पर आप डेटा करंट के फॉर्मेट में भेजते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल आपकी ऐसी होती है, कॉपर टू कॉपर वायर ट्विस्टिंग में ईच अदर, ऐसे। क्या फायदा होता है ट्विस्ट करने का, ना कम। आप इस ट्विस्टेड पेयर से भेजते क्या है, डेटा, ठीक है। डेटा क्या, आपका डेटा, अगर बेसिकली हम ट्विस्टेड पेयर से डिजिटल डेटा भेजते हैं, मीडिया पे जा रहा है तो वो सिग्नल के फॉर्मेट में है, आपके कंप्यूटर पर है तो डिजिटल फॉर्मेट में है। मतलब आपके कंप्यूटर पर डेटा है 101010 के फॉर्मेट में, आपको इसको करंट में कन्वर्ट करना है और इस तार से भेजना है, राइट। अब आपको करंट में कन्वर्ट करने के लिए मान लीजिए हमने माना 10 वोल्ट मीन्स 1 और 5 वोल्ट मीन्स 0, ये माना। तो अब एक इंटरवल के बाद अगर 1 है तो 10 वोल्ट, 5 है, 0 है तो 5 वोल्ट, वो तो हम एक ही तार से भेज सकते हैं। फिर 2 वायर क्यों, देखिए 2 वायर होने का फायदा, ये आपकी वायर जा रही है, ठीक है। एक डिस्टेंस के बाद इसकी इंटेंसिटी लो होने लगती है, कम होने लगती है, वोल्ट करंट जा रही है, थोड़ी दूर जाकर वोल्ट की जो इंटेंसिटी है वो कम होने लगती है। हम अदर एंड पर क्या लेते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब 2 तार होने पे होता क्या है, एक से हम डेटा भेजते हैं और दूसरे से हम भेजते हैं ग्राउंड सिग्नल, अर्थिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने 10 वोल्ट इससे भेजा तो 0 वोल्ट इससे भेजा, व्हाट इज द डिफरेंस, 10। अब बीच रास्ते में दोनों के ऊपर नॉइस का इफेक्ट पड़ा, ये 10 वोल्ट बढ़कर 12 हो गया, फिर उसके बाद दूसरा तार ऊपर आया, ये 0 बढ़कर 2 हो गया, नॉइस का इफेक्ट पड़ा। या तो आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, दोनों की बढ़ी, दोनों की सेम डायरेक्शन में बढ़ी, ये 10 से 12 हो गया, दूसरा वाला 0 से 2 हो गया। अदर एंड पर जाकर फिर से हमने डिफरेंस लिया, 12 माइनस 2 दैट इज 10, मतलब हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल गया। पहला फायदा मीन्स नॉइस के इफेक्ट को कम करता है, ठीक है। दूसरा फायदा, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है, सर्किट के कंप्लीट होने के लिए 2 चाहिए, 2 वायर, मतलब टू कंप्लीट अ सर्किट इट शुड बी 2 वायर्स। तो 2 वायर हम इसी लेते हैं ताकि सर्किट कंप्लीट हो सके और नॉइस का इफेक्ट अगर पड़ रहा है तो वो इफेक्ट भी कम हो सके। तो दिस इज द ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर आपकी 2 तरीके की होती है, एक होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और दूसरी होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जैसी आपकी कॉपर वायर है, उसके ऊपर तो जरूर एक प्लास्टिक की शीट है पर वायर के ऊपर कोई शीट नहीं है, दैट इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, वायर के ऊपर भी कॉपर एक प्लास्टिक की शीट होती है। फायदा, अगर आपकी इस वायर के ऊपर भी प्लास्टिक की शीट है तो नॉइस का इफेक्ट कम पड़ता है, यानी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर नॉइस का इफेक्ट कम पड़ता है, ज़्यादा डिस्टेंस तक आप बिना एम्पलीफाई किए डेटा को भेज सकते हैं। और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर पे नॉइस का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद आपको उसे रीजनरेट करने की, एम्पलीफाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में लेंगे। ओके, थैंक यू।